Welcome to Crave for Goal, where your craving is for motivation and hunger. इस वीडियो में हम द एंड ऑफ बाइपोलरिटी की नोट्स पढ़ेंगे। प्लस अगर आपने चैप्टर 1 यानी कि कोल्ड वॉर एरा नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसके नोट्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, चैप्टर 2 ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। The Union of Soviet Socialist Republic यानी कि USSR came into being after the Socialist Revolution in Russia in 1917. The revolution was inspired by the ideals of socialism and the need of an egalitarian society and to abolish private ownership of property. अब आगे हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फीचर्स क्या थे यूएसएसआर के, यानी कि जो आज के समय का रशिया है उसके पॉजिटिव फीचर्स क्या थे। तो उसके पॉजिटिव फीचर्स थे द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स। द गवर्नमेंट हैड बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, अदर वेलफेयर स्कीम। There was no unemployment since state ownership was prevalent. Now, let's study the negative features of USSR. The Soviet political system was centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। कोई भी अपोजिशन पार्टीज अलाउड नहीं थी। एंड there was lack of democracy and the absence of freedom of speech। मतलब लोगों को वहाँ पर freedom of speech ही नहीं दे रहे हैं। तो आप सोचिए वहाँ का क्या हाल होगा। The Soviet Union lagged behind the West in technology and infrastructure, example transport and power. Causes for disintegration of Soviet Union। तो causes पढ़ रहे हैं इसमें हम कि क्या थे कि जिनकी वजह से जो सोवियत यूनियन था, जो हमारा इतना बड़ा यूएसएसआर था, वो कैसे टूट गया। तो फर्स्ट ऑथोरिटेरियन नेचर यानी कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिटिकल को, कुछ भी आप पॉइंट को एक सब हेडिंग बना सकते हैं। The Soviet system had become very bureaucratic and authoritarian. There was lack of democracy and the absence of civil liberties such as freedom of speech. Also, the government lost popular support due to corruption. हम secondly पढ़ेंगे economic cause क्या था वहाँ का। तो the Soviet economy was faltering in the late 1970s and became stagnant. The Soviet economy used much of its resources in maintaining arms and the development of satellite. अब जो सोवियत यूनियन था वो सारा अपना पैसा किस में लगा देता था, सैटेलाइट्स को खरीदने में, कंपटीशन में। तो उसके साथ क्या हुआ, दिस हैड लेड टू द ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट द सोवियत सिस्टम कुडंट कोप अप विद। थर्ड पॉइंट है राइज ऑफ नेशनलिज्म। देशभक्ति की भावना सब में जाग उठी। द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सोवेरेनिटी within various republics including Russia and Baltic republics, Ukraine, Georgia also became very immediate cause. Fourth point है dominance of Russia. Russia had dominated everything. People from other regions felt neglected and suppressed. People of 15 republics were not even allowed to manage their cultural affairs. इतनी ज्यादा यहाँ पर restrictions थी। सिर्फ रशिया ही एक कह लीजिए कि ऑथोरिटेरियन जीती हुई है, वो सारी रशिया के पास ही है। बाकी जो 15 रिपब्लिक्स थे यानी कि जो 15 और कंट्रीज को मिलके हमारा जो यूएसएसआर बना था, उनके पास कोई राइट ही नहीं थे। Fifth, Gorbachev reforms. Reforms emitted by Gorbachev did not benefit in the way expected. His party members opposed these reforms and Gorbachev lost support on all sides. He is blamed for the disintegration of Soviet Union. Sixth point, ethnic and religious differences. Central Asian republics were dissatisfied and feel alienated with the rest of Soviet Union because of their ethnic and religious differences. As a dire consequences, in December 1991, Russia, Ukraine, Belarus declared that the Soviet Union was disbanded. यहाँ पर जो हमारा सोवियत यूनियन था वो पूरी तरीके से टूट गया था। जितने भी 15 कंट्रीज उसके साथ मिले हुए थे वो सब अलग अलग होने लगे। कॉन्सिक्वेंसेस, अब उसके बाद क्या हुआ। कॉन्सिक्वेंसेस में हम आउटकम्स पढ़ते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। जस्ट अब उसके बाद क्या हुआ वो पढ़ रहे हैं हम। जब यूएसएसआर हमारा टूट गया, पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ। Consequences of disintegration of Soviet Union. The Soviet Union disintegrated in December 1991 and had profound
कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, इसके आउटकम्स देखने को मिले। प्लस आपको डेट भी याद रखनी है कि सोवियत यूनियन कब डिसइंटीग्रेट हुआ, दिसंबर 1991। अभी इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से याद रहे। और कभी कभी क्या होता है, हमको कंफ्यूज कर देते हैं, मंथ का जो नेम लिखा हुआ है दिसंबर, वो आपको याद रखना है इसलिए। तो जो फर्स्ट रीजन था वो था एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर तो एंड हो ही गई। विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, आर्म्स रेस, स्पेस रेस, मिलिट्री ब्लॉक्स, प्रॉक्सी वॉर्स एक्सेट्रा एंडेड, सिग्निफाइंग द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो भैया कोल्ड वॉर किसके बीच चल रही थी, यूएस और यूएसएसआर। अब जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होगा तो यूएस अकेला थोड़ी लड़ेगा। तो जब यूएसएसआर मतलब काइंड ऑफ एक हार गया, क्योंकि वो यूनिटी थी वो मेंटेन नहीं कर पाया, तो यूएस कैसा हमारा बन गया, सोल पावर बन गया। अब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था। द वर्ल्ड नो लॉन्गर रिमेन बाइपोलर। अगर आपने कोल्ड वॉर चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें पता है हमारा जो वर्ल्ड था, पूरा ग्लोब, वो दो पावर्स में डिवाइडेड था। वन इज यूएस एंड सेकंड वन इज यूएसएसआर। अब वर्ल्ड को क्योंकि यूएसएसआर चला गया तो पूरा वर्ल्ड किस में बढ़ गया, यूनिपोलर वर्ल्ड। द वर्ल्ड नो लॉन्गर रिमेन बाइपोलर, द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर, है ना। द नेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म वॉज डोमिनेंट। अब जो कैपिटलिज्म के एक आइडियोलॉजी थी वो ज्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि कम्युनिज्म हमने देखा फेल हो गई। एक कैपिटलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी बन गई जिसपे लोग ज्यादा विश्वास करने लगे। एक तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, प्लस सर्टेन राइट्स दिए जा रहे हैं सिटीजन्स, जो कि सबसे अच्छी बात है। थर्ड जो हमारा पॉइंट था वो था इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत ब्लॉक also resulted in emergence of new countries such as Belarus, Georgia, Estonia and others. अब ये countries पहले किसका पार्ट थे, यूएसएसआर का। बट जब यूएसएसआर हमारे दिसंबर 1991 में ही डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि पूरा हमारा जो यूएसएसआर था वो पूरा टूट गया, तो ये जो कंट्रीज थे ये भी अलग अलग होने लगे। तो अलग कंट्रीज बन गए, बेलारूस अलग, जॉर्जिया अलग, एस्टोनिया अलग। तो इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज देखने को मिला। अब हम पढ़ते हैं शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टुवर्ड डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम इन रशिया यही हुआ ना। हमारा कैसा था पहले, ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम यानी कि कम्युनिज्म चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, लोग थोड़े धीरे धीरे जब उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखी, उन्होंने देखा कि कैपिटलिज्म ज्यादा ग्रो कर रहा है और उसमें ज्यादा हमारे पास राइट्स है, तो वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, कैपिटलिज्म की तरफ। तो दैट इज कॉल्ड शॉक थेरेपी। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिले, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। फीचर्स, रिक्वायरमेंट, कंडीशंस क्या होंगी इसकी। Each of these countries were required to make a total shift to a capitalist economy। यानी कि भाई ऐसा नहीं है कि आधी इकोनॉमी तुम अपना नेशन कैपिटलिज्म पे चला रहे हो और आधा कम्युनिज्म, नहीं। पूरा का पूरा जो टोटल शिफ्ट होगा वो किसकी तरफ होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ऑनरशिप पैटर्न्स वर टू बी ब्रॉट इन। कलेक्टिव फार्म्स फॉर to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. Free trade regime and foreign direct investment were also important. Shock therapy also involved openness to foreign investment, deregulation, and currency convertibility. 6. It also required a breakup of existing trade alliances among the countries of Soviet bloc. Each state from this bloc was now linked directly to West and not to each other in the region. अब हम जान लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए शॉक थेरेपी के। शॉक थेरेपी brought trillion to economies. Shock therapy is a disaster upon the people of entire region. Economic consequences क्या हुए, consequences effects. In Russia, the large state controlled industrial complex and almost collapsed. This was called the largest garage scale in history, as valuable industries were undervalued and sold at throwaway prices. The value of Russian currency, ruble, declined. High level of inflation and people lost all their savings. Inflation जो term है उसका meaning है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई. Russia started to import food as the collective farm system disintegrated. The real GDP of Russia in 1999 was below that what it was in 1989. The old trading structure also broke down. अब सेकेंडली हम पढ़ेंगे इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस।
The old system of social welfare was systematically destroyed. The withdrawal of government subsidies pushed large sections of people into poverty. The academic and intellectual manpower disintegrated or migrated. Post-Soviet states, especially Russia, were divided between rich and poor regions. There was now greater economic inequality between people. Third, political consequences or effects. The constitution of all these countries were drafted in a hurry. They had a strong executive president with the widest possible powers. In Central Asia, the president had great powers and many became authoritarian. For example, the president of Turkmenistan, Uzbekistan appointed themselves to power for 20 years. They allowed no dissent. Dissent is opposition parties or opposition. They also faced the challenge to establish an independent judiciary. इंडो रशिया के रिलेशंस पढ़ेंगे, यानी कि जो इंडिया और रशिया है उनके बीच के संबंध, उनके बीच के रिलेशंस कैसे हैं। यार इतना डिटेल में वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं रिलेशन का मतलब। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, रशिया इनहेरिटेड अ क्लोज रिलेशनशिप विद इंडिया। तो भैया क्लोज रिलेशनशिप तुम सबको पता है कैसी होगी, यहाँ पे समझ जाओ। India's relation with Russia are important aspect of India's foreign policy. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम एक विजन शेयर करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड का, तो इंडिया एंड रशिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड. दिस मीन कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर एंड नॉट वन. कलेक्टिव सिक्योरिटी, ग्रेटर रीजनलिज्म, negotiated settlement of international conflict, independent foreign policy for all countries, decision making through bodies like the UN. Military partnership. अब मिलिट्री में हम दोनों का कैसे संबंध है, कैसा रोल है वो देखते हैं. The Indian military gets most of its hardware from Russia, and Russia stands to benefit from this because India is the second largest arms market for Russia. Third, energy cooperation. Russia has repeatedly came to assistance of India during its oil crisis. Third, energy cooperation. Russia has repeatedly come to assistance of India during its oil crisis. India is seeking to increase its energy imports from Russia. Scientific cooperation. Russia is an important for India's nuclear energy price and assisted India's space industry by giving, for example, the cryogenic rocket to India, and Russia have collaborated on various scientific projects. Other benefits. India stands to benefit from its relationship with Russia on the issues like Kashmir, sharing information on international terrorism, access to Central Asia, and balancing its relations with China. Cultural influences. Indian heroes from Raj Kapoor to Amitabh Bachchan are household names in Russia. Even Hindi film songs could be here in the region. So भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई, अब तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है चच्चा. देखो अब तुम गिफ्ट देखो तुम्हारा ऐसा हाल ना हो ना, इसलिए बोल रही हूँ पढ़ लो इनको, जाके लिखने से काम नहीं चलेगा. ठीक है, तो इनको ना सारे नोट्स को एक बार पढ़ लेना, याद तो छोड़ो, पढ़ लेना बस एक बार. चलो तो भाई लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब जो करना है करो, वीडियो के साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे पता है टीचर्स यार तुम्हारे नोट्स देते नहीं होंगे, इसलिए मैं नोट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ. एग्जाम टाइम में तुम्हें नोट्स की ज़रूरत है, पर तो आप कहीं से भी लोगे, बहुत सारे चैनल्स हैं, बट नोट्स कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है. तो आपको यहाँ पर सारे नोट्स मैं डाल दूंगी. जिस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए वो मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं सबसे पहले उन्हीं चैप्टर के नोट्स डाल दूंगी. थैंक यू.